स्टार्ट विद दैट। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग लेंस फॉर्मूला डील कर चुके हैं, एंड फॉर द टुडेज वी हैव द टू टॉपिक्स जिसको हमें डील करना है, एंड द फर्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ द लेंस एंड द सेकेंड टॉपिक इज व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज। तो चलिए, ज्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट करूंगा नहीं, एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर स्क्रीन। सो in today's topic, what we are going to deal, we are going to study first of all one of the important topic जो हमारी 10th class का ही है, and that topic is power of the lens. Okay, so power of the lens, you all are familiar. So what is the power? The ability, please definition पे ध्यान से देखेंगे, the ability of convergence or divergence, okay, converge or diverge the light ray by the lens, means whenever the lens, we all know that convex lens has a ability to converge the light ray, but कब करता है वो आप सबको जानते हैं, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये डाइवर्ज भी हो सकता है अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हुआ। सो इन अ नॉर्मल कंडीशन, whenever the light rays which are coming parallel to the principal axis, ध्यान से देखेंगे प्लीज, whenever the light rays which are coming parallel to the principal axis, they will converge at a point. Okay, this is the converging behavior. Whenever the light rays are what, coming parallel to the principal axis for a concave, it will diverge the light ray. They appear to be meet at a point जिसे हम focus बुलाते हैं, but ये left की तरफ होता है. So this ability of convergence or divergence of the lens is known as power. इसे power बुलाते हैं हम लोग, known as power. हाँ, now you can say numerically by the value form में, numerically the power is reciprocal of focal length, means less be the focal length. अगर आपका focal length छोटा होगा तो लाइट जल्दी कन्वर्ज होगा, है ना? तो ये बात इस तरीके से है. So power is being numerically equal to the 1 by f. Okay, so one thing that I want to clear with everyone, please never define the power. If someone asks you define the power, and when you say sir power is equal to the reciprocal of focal length, it is not the definition, it is the numerical value which is equal to the focal length. How, कैसे relate है which is equal to the reciprocal? So definition should be the above one, please. Definition वो है, ये formula है. Okay, now in terms of that SI unit, so what is the SI unit of the power? It is diopter. Capital D से represent करते हैं, but when we talk about the SI unit of the power, तो definitely focal length भी SI unit में होनी चाहिए, and length का SI unit होता है meter. Okay, so power SI unit is diopter और meter inverse. So ये एक छोटा सा important note है जिसको आप लोग याद रखेंगे, and might be you also have studied this in the 10th class. Surely आपने 10th class में इसे study किया होगा, that in power, जब भी आप power के numerical करने जाएंगे, in power the F should be in meter. The focal length should be in meter. आपका focal length मीटर में होना चाहिए, तभी आपका पावर डायोप्टर में आएगा. ओके, सो ये बात आप याद रखिए. तो आप अपनी फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कीजिए व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट द पावर, और इन अ रिवर्स मैनर इफ द पावर इज बीइंग प्रोवाइडेड, अगर आपको पावर प्रोवाइडेड है तो आपका जो फोकल लेंथ है वो मीटर में आएगा. इस बात को आपको याद में रखना है. ओके, आप इसे 100/f करके सेंटीमीटर में करते हो वो बात अलग है, तो मैं उस कंफ्यूजन को नहीं रखना चाहता. सो आई वांट दैट पावर इज इन डायोप्टर, फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर. सो आई थिंक आसान सा है फॉर्मूला. चलिए, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई तो कुछ नहीं करने वाले हैं, बस अपनी पुरानी एंड पास्ट नॉलेज से इसे थोड़ा सा अपने लिए बेनिफिशियल उठाते हैं. सो व्हाट वाज द लेंस मेकर फॉर्मूला? लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था भाई? 1/f इज इक्वल टू
mu2 by mu1 minus 1 by r1 minus 1 by r2. Lens maker formula, the original formula for both the lenses, whether we are dealing with the concave lens or whether we were dealing with the convex lens. हम किसी भी लेंस को पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये इस तरीके से आता है. Now check out your left hand side. Left hand side. What is the left hand side? 1 by f. Okay. What happens here? Okay. Now ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या अवेलेबल है? एक सेकंड, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे प्लीज, एक मिनट होल्ड रखना प्लीज. यहां पे just wait a minute please, I want to share the screen. There is some issue, technical issue, just only that. इसके अलावा कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ओके चलिए. So due to some technical fault यार प्लीज, that we have to recall again, हमारा स्क्रीन को दोबारा से हमें देखना पड़ेगा. कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस चीज को हम लोग दोबारा देख लेंगे. एक बार दोबारा से इस चीज को देख लेते हैं यार. ओके सो व्हाट वी हैव डन नाउ, टिल नाउ हमने अब तक क्या क्या कर लिया भाई, इस चीज को जल्दी से ध्यान में दे लेते हैं. दैट वी हैव डिफाइंड द पावर. हम लोग पावर को डिफाइन कर चुके हैं. ओके सो व्हाट इज बीन द पावर? द पावर इज द एबिलिटी ऑफ कन्वर्ज और डाइवर्ज. एक बार जल्दी से मैं लिख रहा हूं, एबिलिटी ऑफ कन्वर्ज और डाइवर्ज. ओके ability of converge or diverge is known as the power of the lens, and numerically, I'm again calling numerically, power is being the reciprocal of focal length. Okay, regarding the SI unit of power is being diopter. ठीक है, capital D, or we can also write as a meter inverse. So important point is that your focal length should be in meter. It must be should be in मीटर. हमारा फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए अगर हम पावर को SI यूनिट यानी डायोप्टर में डील करना चाहते हैं. तो इस बात को आप लोग सारे बच्चे ध्यान में रखेंगे, ठीक है? ओके, आई वाज टॉकिंग अबाउट द लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था. एंड व्हाट वाज द लेंस मेकर फॉर्मूला? दैट 1 by f is equal to mu2 by mu1 minus 1. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 by r1 minus 1 by r2. बट व्हाट इज 1 by f? 1 by f क्या होता है हम लोग ऑलरेडी जानते हैं. इट इज बीन द पावर. सो इन द अनदर लैंग्वेज, दूसरी भाषा में आप लोग पावर का फॉर्मूला ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो. दैट पावर इज इक्वल टू क्या, हम कैसे लिख सकते हैं? पावर इज इक्वल टू mu2 by mu1, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है mu2 by mu1 minus 1 by r1 minus 1 by r2. ये भी हमारे लिए पावर का ही फॉर्मूला है, because it is the formula for not the focal length. ये फॉर्मूला फोकल लेंथ का नहीं था ना बेटा जी, ये फॉर्मूला किसका था? 1 by f का. और 1 by f is numerical equal to the power, तो हम लोग इसे पावर मेंशन कर सकते हैं. ओके, नाउ इफ यू हैव एनी स्पेशल केस, अगर आपके पास स्पेशल केस है, जैसे आपके पास इक्वी कन्वेक्स है. ओके, इक्वी कन्वेक्स. If we have equiconvex, so power formula will become 1 by f, which is equal to mu2 by mu1 minus 1 2 by r. Yes or no? Okay. अगर हमारे पास क्या है? इक्वी कनकेव है. क्या है बेटा? इक्वी कनकेव. The power formula will become 1 by f is equal to mu2 by mu1 minus 1. कनकेव है और वो भी इक्वी, तो minus 2 by r. डन है. सिमिलरली व्हेन वी हैव प्लानो कन्वेक्स, अगर हमारे पास क्या है? प्लानो कन्वेक्स लेंस है, प्लानो कन्वेक्स. सो पावर फॉर्मूला विल बिकम 1 by f is equal to mu2 by mu1 minus 1, यहाँ पे इट इज -1 1 by r. रिमेंबर? ओके. और इफ वी हैव फाइनली प्लानो कनकेव, अगर हमारे पास प्लानो कनकेव लेंस है, then the power formula will become 1 by f is equal to mu2 by mu1 minus 1 by r.
ओके, सो दिस इज बीन द होल अबाउट हाउ वी कैन मॉडिफाई द पावर। तो हमें पावर को इस फॉर्म में भी डील करके रखना है। सो आई होप पावर टॉपिक इज बीन क्लियर। एक सिंपल सा आसान सा टॉपिक था। ओके, now proceed to the next slide, or in this next slide what we are going to study, please check this out. We are going to study combination of lenses। हम ये पढ़ने वाले हैं बेटा जी इस टॉपिक में। दिस इज आवर टुडेज नेक्स्ट टॉपिक एंड द सेकंड और लास्ट टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। Okay, so what we are going to study? We are going to study the combination of lenses. Okay, तो combination of lenses पे काम करना शुरू करते हैं and check this out. चलिए एक बार इस derivation पे और ध्यान देंगे। Means in this topic we are going to study more than one lenses. ध्यान से देखेंगे। So everyone check this out. Let us consider we have two convex lenses. चलिए दो convex lenses को ले लेते हैं यहाँ पे। Okay, let us consider we have two convex lenses. I am again going to redraw. This is my lens number 1. Okay, this is my lens number 2. Lens 2 को draw कर लेते हैं. This is our lens number 2. So two convex lenses are being placed here, lens L1, lens L2, and this is their principal axis. Check this out ताकि आप clearly ध्यान से देखिए. So now for the red lens means for the lens L1, L1 के लिए क्या होगा? This is our object O, which is at a distance of small u. But what is u? मैं फिर से साइड में मेंशन करता हूं यहाँ पे. U is what? U is object distance, है ना? U ऑब्जेक्ट है आपका, बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर विच लेंस? फॉर लेंस L1. Okay, so what happens? Let's start with that. So our ray will reach to the L1. So what is the nature of L1? L1 is a convex lens. तो इसका काम है इसे converge करना normal condition में, and it will try to converge the light ray, और ये अपना एक image बनाता I dash. I dash will be or might be the image for the lens L1 if there was no L2. अगर वहां पे L2 नहीं होता तो आपके पास क्या होता? तो आपके पास इमेज कहां पे बनता? I dash पे. ओके, एंड लेट अस कंसीडर दैट डिस्टेंस इज V dash. इस कंसीडर को क्या बुलाते हैं? V dash बुला लेते. तो व्हाट इज V dash? V dash इज द इमेज डिस्टेंस. V dash क्या है? इमेज डिस्टेंस फॉर L1. L1 के लिए इमेज डिस्टेंस है V dash. नाउ दिस लाइट रे, ये जो लाइट रे है जो कि फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्ट होके गई है, वो सेकंड सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है. ओके, अब सेकंड वाला लेंस क्या करेगा लाइट को? सेकंड लेंस इज गोइंग टू कन्वर्ज इट मोर. ये इसे कन्वर्ज करेगा और अपनी फाइनल इमेज आई पर बनाएगा. किस पे बनाएगा? आई पर अपनी फाइनल इमेज बनाने वाला है. ओके, तो अब ध्यान से देखना है. O is the object for L1. I dash is the image for L1. But this same I dash, जो कि हम डिस्टेंस V dash से नाम रख रहे हैं, it will act as a object. ओके, ये क्या हो रहेगा? ये ऑब्जेक्ट रहेगा फॉर व्हाट? फॉर L2. ये L2 का ऑब्जेक्ट रहेगा. इस बात को आपको ध्यान में रखना है. और फाइनली जो हमारी आई पर बनी है इमेज, दैट डिस्टेंस इज V. दैट डिस्टेंस V वुड बी कॉल्ड एज इमेज. ये हमारी क्या है? ये हमारी इमेज डिस्टेंस है फॉर व्हाट? फॉर L2. तो क्लियर हुआ? तो वैसे ही हो गया जैसे हम लोगों ने लेंस मेकर फॉर्मूले के दौरान किया था. तो यहां तक कहानी क्लियर है. तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं. एंड लेट F1 is the focal length. F1 is the focal length of L1 and F2 is the focal length of L2. ठीक है, ये दो हमारी फोकल लेंथ है. तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दैट और इसको आगे प्रोसीड करते हैं. सो व्हाट इज द प्रोसीडिंग इज सेइंग. सो जल्दी से अप्लाई कर लेते हैं और अप्लाई करके यहां से कहानी को थोड़ा सा ट्विस्ट रख लेते हैं. अब ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे प्लीज यहां पे. ओके, नाउ अप्लाई
lens formula. Please everyone apply lens formula for L1. L1 के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. L1 ओनली L1. तो लेंस फॉर्मूला इज 1/v. तो फर्स्ट लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस क्या है? v डैश माइनस 1/u. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u. अभी हम साइन यूज नहीं कर रहे हैं. इज इक्वल टू 1/f1. This is our equation 1. Okay. Similarly, please apply lens formula again. लेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. लेंस फॉर्मूला फॉर L2. L2 के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. L2 के लिए इमेज क्या है? V. तो 1/v minus 1/u. U stands for object distance, but for L2 the object is V dash is equal to what? 1/f2. This is our equation 2. So by this manner we board for both the lenses and we make the two what? हम लोगों ने क्या बना लिए? हम लोगों ने दो equations बना लिए यहाँ पे. Okay, so now what you have to do? You have to add equation 1 and 2, and when we add that, आप लोग डायरेक्टली इस बात को समझ सकते हैं. This 1/v dash मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं. This 1/v dash will cancel with this 1/v dash because ये देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव होने वाला है. ओके, सो बाय दिस मैनर अगर हम लोग यहां से अपने पार्ट को डील करें और अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास क्या बचेगा? व्हाट इज द फाइनली वी लेफ्ट विद? वी लेफ्ट विद 1/v minus 1/u on the left hand side is equal to, on the right hand side we left with 1/f1 plus 1/f2, and this is our equation 3. Am I clear? I think यहां तक हमारी सारी कहानी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर आई होगी. Okay. Now everyone check this out. Now what we are going to do? We are going to consider one thing. So let us consider an equivalent lens. एक equivalent lens को consider करते हैं. Equivalent lens means a single lens, एक अकेला लेंस जो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे दोनों मिलके कर रहे थे. मींस इफ वी प्रोवाइड द ऑब्जेक्ट O टू दिस लेंस, इट विल गिव्स द इमेज I2 ऑफ दिस. तो जो इमेज उसने दोनों ने मिलके बनाया वही अकेला ये बनाएगा. L इक्विवेलेंट whose focal length is f equivalent मान लेते हैं. Object distance is u and image distance is v. It is similarly, ये वैसा ही है जैसे हम लोगों ने नेट कैपेसिटेंस को पढ़ा था, नेट रेजिस्टेंस को पढ़ा था, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे नेट इक्विवेलेंट कंसीडर कर रहे हैं. तो इसके लिए लेंस फॉर्मूला क्या होगा? 1/v minus 1/u is equal to 1/f equivalent. This is our equation number 4. Now we can compare by 3 and 4. Check out your equation 3 and check out your equation 4. Their left hand sides are equal, and if their left hand sides are equal, we can conclude F equivalent, 1/f equivalent is equal to 1/f1 plus 1/f2. This is our final result for combination of two lenses. Okay, we consider the two lenses. हम लोगों ने यहाँ पे दो lenses को consider किया था. आप चाहें तो यहाँ पे 3 lenses, 4 lenses और proceed करके आगे भी जा सकते हैं. उसमें कोई issue नहीं होने वाला. Am I clear? So what is the formula for F equivalent? The formula for F equivalent is equal to 1/f1 plus 1/f2 जो कि आपके पास available है यहाँ पे. Done with that? चलिए इसे note down कीजिए. ओके, नाउ वन मोर थिंग, इसे एड ऑन करवाना चाहूंगा, प्लीज एक बार थोड़ा सा ध्यान देना. तो व्हाट इज 1/f1? वी कैन राइट एज अ p1 पावर ना. 1/f इज पावर, हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है. व्हाट इज 1/f2? इट इज p2. सो व्हाट वुड बी 1/f इक्विवेलेंट? इट वुड बी p इक्विवेलेंट. सो बाय दिस मैनर हमने एक और फॉर्मूला बना लिया. ओके, सो बाय दिस मैनर अब आपके पास 2 रिजल्ट्स आ गए हैं, एंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आर that कि if we have two lenses, अगर हमारे पास दो lenses हैं with focal length f1 and f2, so what would be the net focal length? It would be the reciprocal. जैसे हम लोग, अगर मैं कहना चाहूं
जैसे हम लोग पैरेलल ऑफ रजिस्टर्स का नेट निकालते थे। और अगर हमें नेट पावर चाहिए, क्या चाहिए? नेट पावर, इट वुड बी डायरेक्ट अलजेब्रिकली सम। ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट नोट मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, द नोट फॉर बोथ द फॉर्मूलाज, दैट ड्यूरिंग दिस डेरिवेशन, प्लीज चेक दिस आउट, ड्यूरिंग दिस होल डेरिवेशन ऑन द स्क्रीन जो आप लोग देख रहे हैं, we haven't used the sign convention, हमने आज कोई साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया, हमने जस्ट केवल फॉर्मूले पुट किए। इसका मतलब अभी भी लेंस फॉर्मूला मैथमेटिकली अनबैलेंस है, तो इसका मतलब यू हैव टू यूज द साइन। आपको जब भी आप इस फॉर्मूले को यूज करने जाएंगे, आपको फोकल लेंथ को यूज कर रहे हैं, पावर को यूज कर रहे हैं, आपको साइन यूज करना पड़ेगा। जैसे कि कन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कनकेव का नेगेटिव होता है, पावर भी वैसे ही आपको यूज डाउन करना है। Am I clear? So this is been the part जो आपको प्लीज यहां से देखना है और इसमें आपको काम करना है। डन है? तो पहले तो इस चीज को सारे बच्चे नोट करके रख लीजिए, और नोट करने के बाद अपने पार्ट को एक बार जल्दी से विद इन द 2 मिनट्स प्लीज एक बार इसे नोट करना और अपने दिमाग में बैठाना। एवरीवन डन है? चलिए, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन अ न्यूमेरिकल। सो न्यूमेरिकल पे जाने से पहले आई वांट टू आस्क एवरीथिंग दैट यहां तक वी स्टडीड अबाउट व्हाट, वी स्टडीड अबाउट द पावर ऑफ द लेंस, देन हमने उसके छोटे छोटे फॉर्मूलेज भी देखे हर स्पेशल केस के लिए, देन वी जंप ऑन टू द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज भी डील किया बेटा। ओके, टिल नाउ यहां तक इज देयर एनी प्रॉब्लम दैट एनीवन हैव? बिकॉज इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे जाने वाले हैं। अगर किसी का कोई इश्यू है तो ही और शी कैन आस्क मी, अभी पूछ सकता है भाई, किसी का कोई इश्यू है तो वो पूछो, बताइए कि सर दिस इज द इश्यू और ये एक प्रॉब्लम है जो हम पूछना चाहते हैं, आप लिख के भेज सकते हैं जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर जस्ट 2 to 3 मिनट्स में आपका वेट कर रहा हूं, तब तक आप बता लीजिए और इन फॉर्मूलेज को नोट करके रखिए अपने पास। प्लीज एवरीवन टेक आउट योर नोटबुक, क्योंकि अभी हमें न्यूमेरिकल करना है, तो प्लीज एवरीवन टेक आउट योर नोटबुक, टेक आउट योर पेन, मटेरियल, राइटिंग मटेरियल, एवरीथिंग। सो आई एम जस्ट गिविंग यू 2 मिनट्स टू रिकॉल एवरीथिंग, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क मी, कोई भी चीज जो आप मुझसे पूछना चाहते हो अभी, जस्ट आस्क मी राइट नाउ। आप टेक्स्ट करके भेज दीजिए, आई विल डिक्टेट ऑन दैट, मैं उस पर आपसे बात कर लूंगा, कोई इश्यू नहीं है। So anyone, please, anything, जल्दी बताइए। If you have no issue, just write down that you don't, आपके पास कोई इश्यू नहीं है, सारी चीजें ओके है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडे, जस्ट लेट मी नो क्विकली, बिकॉज इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे जाने वाले हैं। चलो चलो भाई, लिख के, कौन है डाउट वाला? सर वी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्यों है वो, वी डैश को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्यों लिया बेटा? वी डैश इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द फर्स्ट लेंस ना, जो कभी बना नहीं, बट एक इमेजिनरी इमेज बनी, तो वी डैश एक इमेजिनरी इमेज डिस्टेंस है। और अगर आप अपने एक्सप्रेशन पे देखें तो आपको फाइनल एक्सप्रेशन पे वो दिखाई नहीं दिया। देखो फाइनल एक्सप्रेशन की जब बात आई, इन द फाइनल एक्सप्रेशन वी डैश गायब हो गया था, देखिए आप उसमें, तो वी डैश हमारे पास तो में हमारे पास इमेज डिस्टेंस में फाइनल इमेज क्या बनी जो रियल में है, दैट इमेज डिस्टेंस इज वी, वी है। वी डैश एक हाइपोथेटिकल इमेज डिस्टेंस था ताकि हम दोनों लेंसेज को कनेक्ट कर सके, यानी जो फर्स्ट का इमेज डिस्टेंस है वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ओके, बट फाइनली वो हमारे पास बचेगा नहीं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों ने उसे क्या किया, हम लोगों ने उसे बस केवल इमेज डिस्टेंस की तरह ट्रीट किया और हम लोगों ने उसे बस डील किया, बट फाइनली वो हमारे पास पेंडिंग में नहीं रहेगा। क्लियर है यहां तक? एनीवन, एनी मोर इश्यू, प्लीज बताइए जल्दी, इसके बाद कोई अगर कोई पॉइंट है। ओके, डू वी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल? आ जाए भाई न्यूमेरिकल के ऊपर, जल्दी बताते जाओ।
जस्ट इसके बाद अपने पेन, नोटबुक एंड एवरीथिंग आपको नोट डाउन करके रखनी है और अपने पास रखना है, सो दैट हम लोग उस पर वर्क कर सके। चलिए, ओके, लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। चलिए भाई अपने न्यूमेरिकल पे काम करना शुरू करते हैं। तो अभी आपके कोई डाउट नहीं है तो चलिए, है ना? चलिए, क्लियर है। Okay, now on the screen now, please check this out. So there are some numericals that I have picked so that हम लोग उस पे काम कर सके. So we start with the simple one. So हम लोग सबसे पहले simple one से start करते हैं. So we have a example number 70 in front of you. आपको दिखाई दे रहा है? So what does question says? Question says the radius of curvature for the each surface of the convex lens of 1.5 refractive index is 40. Okay, radius of curvature of each surface is 40 centimeter. It means is that both the radius are equal, and whenever both the radius are equal, it means ये क्या है? It is equiconvex lens, है ना? So this is our special case. And for the equiconvex lens मैंने अभी अभी आप लोगों को फॉर्मूला सिखाया था। क्या था फॉर्मूला? He is asking for the power ना? Power is equal to 1 by f, which is equal to mu 2 by mu 1 minus 1 2 by r, है ना? इक्वी कन्वेक्स के लिए 2 बाय आर है, तो चलिए बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हेल्प मी आउट इन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी मच क्विकली। सो पावर इज इक्वल टू म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विच इज हाउ मच 1.5. ओके, म्यू वन स्टैंड्स फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। एंड मैंने आपको पहले भी बताया एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ देयर इज नथिंग टॉक अबाउट द सराउंडिंग इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में सराउंडिंग के बारे में कोई बात नहीं की गई है, यू विल टेक दैट एज अ एयर। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाय r, एंड व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर 40। इक्वी कन्वेक्स है तो कोई साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है आपने, ऑलरेडी अपने आप सब कुछ आ जाएगा। Let us solve 2. This is how much? That would be 20. So what is 1.5 minus 1? 0.5 multiplied by 1 by 20. Okay. When we remove the decimal, divide by 10, and it would be how much? 5 fours are. So it would be 1 by 40 diopter. And you can convert this into a decimal. 1 by 4 is equal to how much? 1 by 4 is equal to 0.25, and it would be 0.025 diopter. Clear with this? एक simple आसान सा क्वेश्चन था। Now proceed to the next one. चलिए next वाले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। What is the next question? Says a double convex lens. Double convex lens. Double convex means equiconvex. So please डबल कन्वेक्स का नाम याद रखेंगे, इसे ही इक्वी कन्वेक्स बुलाते हैं। ठीक है, याद रखना प्लीज इस बात को। अ डबल कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर how much? +5. So power is equal to +5 diopter. Refractive index of glass is how much? 1.5. Now both the surface are equal. ये हमें बता दिया गया है। Find the value of curvature means he is asking for the radius of curvature. I hope ये वाला क्वेश्चन आसान है। Okay, everyone इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे and just share your answer. जल्दी से प्लीज। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर प्लीज एवरीवन। क्वेश्चन वैल्यू एक बार देख लेंगे प्लीज एवरीवन, वैल्यू को नोट करेंगे। मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूं, प्लीज नोट डाउन द वैल्यू। वैल्यूज को नोट डाउन कर लीजिए। द पावर इज इक्वल टू हाउ मच? पावर इज 1.5 +5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। प्लीज जस्ट शेयर योर आंसर प्लीज एवरीवन। हरी अप प्लीज। ओके
डन है 0 पॉइंट ये 1/5 0.2 0.2 ओके ओके डन है इट इज इन मीटर ना ओके डन वेरी गुड चलिए ओके सो आई होप इट मीन्स दैट कि आप क्वेश्चन को गेट कर पा रहे हैं चलिए ओके डन है तो दैट क्वेश्चन इज बीन डन ये हमारा हो गया तो आई थिंक आप 71 क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हैं इसमें कोई इश्यू नहीं है ओके नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 72 चेक दिस आउट चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है हमारे पास द क्वेश्चन सेज a convex lens is made up of glass of refractive index 1.5 of the glass is how much 1.5 and if the radius of curvature of each the two surfaces कितने both the surfaces की बात चल रही है each of the two surfaces okay each of the two surfaces का हमारा radius of curvature is 20 centimeter each of means it is again equiconvex so this case is again being the equiconvex case बन चुका है हमारे लिए okay now he is asking something different find the ratio of powers of the lens when the placed in air to the power when it is immersed in a liquid of refractive index 1.25 तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.25 नाउ ही इज आस्किंग यू व्हाट ही इज आस्किंग फॉर पावर इन एयर टू द पावर इन लिक्विड ओके सो पावर इन एयर को आप लोग क्या लिख सकते हो 1 by focal length in air divided by power in liquid 1 by focal length in liquid okay is that okay so if we solve it would become focal length in liquid divided by focal length in air and does this expression ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन रखा है क्या ये आपके दिमाग में कोई बेल रिंग कर रहा है फोकल लेंथ इन लिक्विड बाय फोकल लेंथ इन एयर तो आई थिंक हमारे पास ये फॉर्मूला ऑलरेडी है जो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं क्या है फॉर्मूला फोकल लेंथ इन लिक्विड बाय फोकल लेंथ इन एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास -1 मल्टीप्लाई विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड होल डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड आई थिंक ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने डायरेक्ट बना के लिखा हुआ है तो आप अपनी नोटबुक में इसे भी नोट कर सकते हो कि दिस फॉर्मूला इज द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ इन लिक्विड बाय फोकल लेंथ इन एयर बट इसे पावर इन एयर बाय पावर इन लिक्विड भी बता सकते हैं ओके और यही टीचर हमसे जानना चाहता था तो लेट्स सॉल्व दैट आउट इसे सॉल्व कर दीजिए बस इसमें कोई इशू नहीं है आपके पास चलो जल्दी से करो फोकल लेंथ इन एयर बाय फोकल लेंथ इन लिक्विड So refractive index of glass is how much 1.5 minus 1 okay multiply by what is the refractive index of liquid 1.25 divided by refractive index of glass 1.5 minus 1.25 done है so please अगर इसे solve करें it would be 0.5 multiply with 1.25 divided by 1.5 minus 1.25 it would be 0.25 है ना okay these two decimal this would be cancelled with this and 25 5s are and 5 25 and it would be 2.5 by 1 and since we are asking for the ratio तो आप इसे फ्रैक्शन में रखना चाहते हो तो ये आपका चॉइस रहेगा 5 5 and 5 2 so what would be the ratio would be 5:2 यानी power in air to the power in liquid the ratio is 5:2 clear है so I think we have to ready for this type of questions also इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी प्लीज तैयार रहना और उनको अपने दिमाग में ये चीज बिल्कुल बना के रखना कि आपके पास क्वेश्चन दोनों तरीके से हो सकता है डन है भाई इज दिस क्वेश्चन इज ओके ये वाला क्वेश्चन ओके है चलिए ये वाला क्वेश्चन जल्दी से बताइए प्लीज यहां तक ओके है क्वेश्चन डन है चलिए तो हमें रेडी रहना पड़ेगा इस वैरायटी वाले क्वेश्चंस पे भी चलिए एक और क्वेश्चन है वन मोर क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट आई विल प्रोवाइड यू द असाइनमेंट फॉर दैट आपके पास आपकी असाइनमेंट अवेलेबल हो जाएगी सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर टुडेज सेकंड टॉपिक हमने पावर कॉम्बिनेशन पढ़ा था ना तो चलिए उसका भी एक क्वेश्चन को चेकआउट कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बनने वाला है सो क्वेश्चन सेज टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ
+10 and -5. तो F1 is +10 ले लीजिए, and what is F2? F2 is -5 centimeter. What is the combined focal length and the combined power? Direct, easy, simple question. So combined focal length, it would be the 1 by F1 plus 1 by F2. What? 1 by 10 plus में 1 by -5. Okay, उन्होंने ऑलरेडी पैसे पहले मेंशन कर दिया दैट फोकल लेंथ इज नेगेटिव, तो हमें लेना ही पड़ेगा. तो यहाँ पे कनकेव भी लिख देता है. अगर कनकेव लिख दे तो आई थिंक आप सॉल्व कर सकते हैं. एलसीएम वुड बी 30. ओके, एंड एलसीएम वुड बी 30 क्यों? एलसीएम वुड बी, सॉरी माय मिस्टेक, यू कैन टेक दैट एज अ 20 ना. एलसीएम वुड बी 20. So LCM would be 20. So 10 to negative and 5 4. So it would be what? It would be negative what? Negative 2 by 20. And when we solve that, it would be what? It would be 1 by 10. है ना? Okay. है ना? चलिए. So ये वाला पार्ट प्लीज, आई होप आप लोग यहां तक डन हो गया था. इसे सॉल्व करना है. एक बार वापस से एक बार स्क्रीन पे जाते हैं यार. That technically, just wait a minute for that. Okay, so this was the question. I think वो that rubbed out due to the some issue, so no problem in that. So I think हमारा focal length equivalent आ जाएगा. आप इसे डन कर सकते हैं. So the equivalent focal length would be, क्या आया था हमारे पास equivalent focal length? Okay, now that done. से पहले वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा बता दो. Which question that you are asking? चलो आ जाते हैं उस क्वेश्चन पे. पहले इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए. So the F equivalent would be how much? The F equivalent would be, हमारे पास क्या आया था? -1 by 10 बना था. Okay, so that would be -10 centimeter. So what is the equivalent focal length? Equivalent focal length is -10. Just you apply the formula of 1 by F1 plus 1 by F2. Now in the second he is asking for the power of combination. तो या तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं that equivalent power is equal to P1 plus P2. So पहले आप अपना P1 कैलकुलेट कीजिए 1 by F1, P2 कैलकुलेट कीजिए 1 by F2, and then you do that. Or either you can say the equivalent power is equal to 1 by F equivalent. But our focal length is in centimeter. So if we want to convert this into a meter, तो मीटर में कितना आएगा ये? That would be 0.1 मीटर, वो भी नेगेटिव का, है ना? So that formula would be 1 by -0.1. And when the decimal sign removes, 0 goes up. So the equivalent power is equal to -10 diopter. Now check this out. One more question that I can ask you, and that question is, what is the nature? इस क्वेश्चन पे ध्यान देना. What is the nature of combination? कॉम्बिनेशन का नेचर क्या होने वाला है ये आपको बताना है. प्लीज इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना. ये भी पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन. सो योर कॉम्बिनेशन और कंबाइंड फोकल लेंथ वाज नेगेटिव. कंबाइंड फोकल लेंथ कैसी आई? नेगेटिव आई. कंबाइंड पावर भी कैसी आई? नेगेटिव ही आई डेफिनेटली. सो नेगेटिव इंप्लाइज इट इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग. नेगेटिव इंप्लाइज इट इज डाइवर्जिंग. सो इफ द टीचर आस्क what is the combined nature, you will say the nature is diverging. Diverging nature, ये भी आपसे पूछा जा सकता है. Clear है? Done है? Okay. This question has been asked. बेटा जी इस क्वेश्चन में आप लोगों ने एक एक्सप्रेशन बनाया था, and that expression was, क्या था हमारे पास एक्सप्रेशन? The power in air divided by power in liquid. तो ये क्या बनेगा? फोकल लेंथ इन लिक्विड बाय फोकल लेंथ इन एयर बनेगा, क्योंकि पावर एयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. पावर अपनी फोकल लेंथ के साथ एंड दिस फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास -1 मल्टीप्लाई विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय म्यू जी माइनस म्यू एल. ये फॉर्मूला ऑलरेडी पहले बनाया जा चुका है. सो जस्ट यूज दिस डायरेक्ट फॉर्मूला एंड योर आंसर वुड बी 5:2, जो हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला था. डन है? Okay, so now for the today's lecture, this is been your homework. ये भाई आपका homework है. So
प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड आई एम गोइंग टू ऑल्सो शेयर इन द ग्रुप ऑल्सो, सो द स्टूडेंट दोज हु आर नॉट कनेक्टेड इन द व्हाट्सएप, क्योंकि ये सबके लिए है, सो दे कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट एंड you have to complete these 6 questions. These 6 questions are based on the power, combination, and the previous topic also can be included here. Done है? So I hope आप लोगों ने screenshot ले लिया. चलिए. Done है? So I hope today's lecture is been, आपको आज का lecture बिल्कुल clear हो गया होगा. So today's lecture has been pretty much clear. Done? चलिए. ओके, सो आज के लेक्चर से जितनी भी चीजें जो हम लोगों ने चीजें सीखी हैं, दीज आर द 2 पॉइंट जो हम लोगों ने सीखा है. कौन कौन से? वी स्टडीड अबाउट द पावर एंड सेकेंडली वी स्टडीड अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने डील किए. सो एट द एंड आई शेयर द स्क्रीन ऑफ द असाइनमेंट. मैं दोबारा से उसे शेयर कर रहा हूं, प्लीज उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अभी भी कुछ लोग बता रहे हैं सर एक बार वापस से शेयर कर दीजिए. दिस इज योर स्क्रीन. Take the screenshot of that screen. Please इसका screenshot ले लीजिए and you have to complete these 6 questions by tomorrow. ये सारे के सारे 6 questions solve करने हैं आप लोगों ने, और उनका फोटोग्राफ और पिक्चर क्लिक करके आप लोगों को मुझे भेजना है प्लीज.